Good afternoon, class 8. As we were doing chapter 7, that was conservation of plants and animals, and now we are starting with this fact that is very interesting. The Indian government launched Project Elephant in 1992 with the aim of protecting elephants and their natural habitats, especially elephant corridors. What is elephant corridors? Elephant corridors वो छोटे छोटे लैंड के स्ट्रिप्स होते हैं जहाँ पर जो एलिफेंट्स होते हैं वो हर्डिंग करते हैं, यानी कि चरते हैं, अपना जो खाना वाना खाते हैं वो वहाँ पर करते हैं. Okay, especially corridors are narrow. Elephant corridors are narrow strips of land over which elephant herd move from one place to another. There are over 100 identified elephant corridors in India. Next, conservation reserves and community reserves. These are buffer zones or migration corridors between established national parks, wildlife sanctuaries and reserved forest. यानी कि ये माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं जहाँ से जब वो जो एनिमल्स हैं जब वो माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो वो वहाँ पे अपनी हर्डिंग करते हुए जा सकते हैं. तिरुविदैमारुदुर Conservation Reserves in Tamil Nadu is the first such conservation reserve which was established in 2005. Okay, this was the first conservation which used this method of migration corridors, and this was used in this conservation reserve which was established in 2005 in Tamil Nadu. Now moving next to the topic of biosphere reserve. What is biosphere reserve? Biosphere reserve is an area where the flora and fauna are as well as the traditional lifestyle of tribal communities living in the region are protected. यानी कि बायोस्फीयर रिज़र्व वो एरिया होता है जहाँ पे फ्लोरा और फोना प्लस साथ साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं ना, जो काफ़ी टाइम से जो पुरानी टाइप की जो कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो रह रही हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है वहाँ पर. इट सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर साइंटिस्ट्स हु मॉनिटर एंड इवेल्युएट चेंजेस इन नेचुरल इकोसिस्टम. ये एक रेफरेंस पॉइंट भी माना जाता है उन साइंटिस्ट के लिए जो कि इकोसिस्टम में काफ़ी चेंजेस देखते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं. देयर आर 18 बायोस्फीयर्स रिजर्व्स इन इंडिया. द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, द लार्जेस्ट बायोस्फीयर इन इंडिया. द ग्रेट रन of Kutch in Gujarat is the largest biosphere in India, is the home of the Indian wild ass and is a breeding ground for flamingos. See, this is very important that the Great Run of Kutch in Gujarat is the largest biosphere in India, and it is the home for Indian wild ass and is a breeding ground for flamingos. A biosphere reserve may have national parks. जो biosphere reserves में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो they may have national parks, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद इन इट्स एरिया, वो उतने एरिया में ही वहाँ पर आती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन वेस्टर्न घाट इंक्लूड 4 नेशनल पार्क्स एंड 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्टर्न घाट्स में, उसमें 4 नेशनल पार्क और 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलग अलग हैं, यानी कि टोटल 8 चीज़ें अलग अलग हैं वहाँ पर. इट इज़ होम टू द लायन टेल मकाओ एंड नीलगिरी तहर. और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती हैं? द लायन टेल मकाओ एंड नीलगिरी तहर, ये उनका होम है. नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट रिजर्व. फॉरेस्ट रिजर्व इज़ अ फॉरेस्टेड लैंड वेयर एक्टिविटीज़ सच एज हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर बैंड. वहाँ पर हंटिंग यानी कि शिकार करना और ग्रेजिंग, अपने जो जानवर हैं उनको चराना, बिल्कुल बैन है. इन सम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ लिविंग ऑन द फिंगर्स आर अलाउड टू अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. यानी कि वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं वो फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स से अपना लाइवलीहुड चलाती हैं. नेक्स्ट थिंग कम्स इज मरीन प्रोटेक्टेड एरिया. इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ अ सी, ओशियन, इजॉर्शी एंड और अ लार्ज लेक. what is estuary? The part of a large river where it becomes wide or flows into a sea. That area is known as marine protected area. Okay, next thing comes is zoological park or zoo.
We have a zoo in Delhi as well. In zoos, animals are housed in enclosures and displayed to the public. Zoos increase awareness about endangered animals and undertake breeding programs for rare and endangered animals. Zoos में क्यों रखा जाता है उनको एनिमल्स को? ताकि वो वहाँ पर एक तो प्रोटेक्टेड रहें और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं वो वहाँ पर रिप्रोड्यूस होकर अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकें। प्लस साथ साथ उनको जो लोग हैं उनको अवेयर किया जाता है कि ये जो स्पीसीज़ हैं या फिर ये वाले जो एनिमल्स हैं ये इंडेंजर्ड हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स इज बोटेनिकल गार्डन. इट इज़ अ गार्डन एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट स्पीसीज. द रॉयल बोटेनिकल गार्डन न्यू इन लंडन इज़ अ UNESCO World Heritage Site with a collection of over 40,000 species of plants. वहाँ पर 40,000 से भी ज़्यादा species plants की हैं. आचार्य जगदीश चंद्र बोस Indian Botanical Garden near Kolkata is the oldest and the largest one of its kind. जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस, this is an Indian Botanical Garden that is near Kolkata, is the oldest and the largest of one of its kind in India. Now here we have an activity that our aim is to find about the protected areas in your state. Material required is a pen, paper, internet connection, reference books. यानी कि इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या फिर बायोस्फीयर जो आपके एरिया के नियर अबाउट वहाँ पर हैं और वहाँ पर प्रेजेंट प्लांट स्पीसीज़ एंड एनिमल स्पीसीज़ के बारे में लिखना है. This activity is not very much important, so we can skip it. Now moving next to our next topic is conservation of forest and wildlife. Now, how do we conserve forest and the wildlife there? We should take steps to conserve our forest to protect flora and fauna. The adverse effect of deforestation can be reversed by afforestation or reforestation. What is afforestation and reforestation? To plant new trees. ओके, दैट इज़ नोन एज एफोरेस्टेशन और रीफोरेस्टेशन. यानी कि वापस से काफ़ी सारे पेड़ को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, उनको अच्छे से ग्रो करना, that is afforestation. The adverse effect of deforestation can be reversed by afforestation or reforestation. It involves renewing a forest by planting new trees of the same species. उसी same species के नए नए ट्री लगाना. Reforestation can also टेक प्लेस नेचुरली. जो रीफॉरेस्टेशन है वो नेचुरली भी अपने आप उग जाती है. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से उनके फ्रूट्स या फिर उनकी सीड्स जो है वो नीचे गिर जाती हैं और फिर वो सॉइल के नीचे दब के बारिश की वजह से और सनलाइट की वजह से वो वापस से ग्रो होने लग जाते हैं. तो रीफॉरेस्टेशन नेचुरली भी अकर हो जाती है. If a deforested land is left undisturbed, the forest regenerates on its own. या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जो पेड़ हम लोग काट देते हैं और फिर उस लैंड को हम छेड़ते नहीं हैं तो वो वहीं से पेड़ जो है वो वापस ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ reforestation. Now here we have our first point as restrict the felling of trees in forest. यानी कि हमें जो पेड़ जो वहाँ पर गिरते रहते हैं उनको रोकना चाहिए ताकि वो इजीली गिरे ना वहाँ से. प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट में आग लगने से बचाना चाहिए. प्लांट ट्रीज़ इन बैरन एरियाज़. जो ट्रीज़ को वहाँ पर हमें जो एरियाज़ हैं वहाँ पर प्लांट करना चाहिए. प्रोटेक्ट ट्रीज़ फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़. रिमूव इन्फेक्टेड ट्रीज़. जो इन्फेक्टेड ट्रीज़ हैं उनको वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि बाकी के पेड़ जो हैं वो पेस्ट और डिजीज़ से बचे रहें. प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम ओवरग्रेजिंग. फॉरेस्ट को ओवरग्रेज होने से यानी कि जो बहुत ज़्यादा चरते हैं ना एनिमल्स तो उसी एक जगह से ज़्यादा ना चरें वो, और ताकि वहाँ की जो लैंड की फर्टिलिटी वो ना चली जाए, उस चीज़ से हमें बचाना चाहिए. प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. बिकॉज जो पेपर होता है वो बनता है ट्रीज़ से. अगर हमें पेपर चाहिए तो हमें ट्रीज़ की कटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को प्रमोट करना चाहिए. इट टेक्स एन एस्टिमेटेड 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर. 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ की हमें ज़रूरत होती है सिर्फ 1 टन पेपर को बनाने के लिए. इस वजह से हमें पेपर्स को रिसाइकिल करना चाहिए. ओके,
Paper can be recycled up to 7 times. If we recycle paper, then we can save many trees from being cut. Recycling paper would also mean saving energy and water needed to manufacture paper. It would also reduce the use of harmful polluting chemicals that are used in manufacturing papers. और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो polluting chemicals होते हैं उनको भी यूज़ करने से हम बचेंगे, ओके, जो कि हम पेपर को बनाने में यूज़ करते हैं. वी शुड टेक स्टेप्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. फर्स्ट इज़ प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन टू कंजर्व हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को होने से रोकना चाहिए. प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ओशियंस. इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट द हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं उनको हंट होने से बचाना चाहिए. प्रिवेंट पोचिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पोचिंग वो वाली वो प्रोसेस थी जब हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं या तो उनके टीथ का या उनकी स्किन का अपने ट्रेडिंग के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, मैन मेड फ़ायदे के लिए जब हम उनका यूज़ करते हैं, दैट इज़ पोचिंग. उनका यूज़ नहीं करना चाहिए. प्रोटेक्ट माइग्रेशन रूट्स एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एरियाज दैट कनेक्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड अलो वाइल्ड एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमें क्या चीज़ बनानी चाहिए? माइग्रेशन रूट्स बनाने चाहिए ताकि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से सेफली ट्रैवल कर सकें. नेक्स्ट इज़ इनकरेज इको टूरिज़म थ्रू नेचुरल कैंप्स. इको टूरिज़म हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए. Conduct periodic surveys of forests to have updated information about the population of animals and plant species. Next is promote awareness about wildlife, make the local people aware about the causes and harmful effects of loss of biodiversity and the ways to remedy द प्रॉब्लम, यानी कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि वो वहाँ की उन सब चीज़ों को समझें कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी. सो इस वजह से वो लोग भी वहाँ की फिर वाइल्ड लाइफ की थोड़ी सी प्रोटेक्शन करेंगे, राइट.